الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر رات میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور دن میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اس رات اور اس دن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھیں ایک بار اور درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ بار گل گلزار قادریت پیر طریقت صوفی باصفا حضرت پیر سید رضا حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور بزرگ عالم دین مولانا میر محمد صاحب، نقیب اہل سنت مولانا عمر صاحب اکبری، مولانا صدیق صاحب، مولانا الیاس صاحب اور قاری ذاکر صاحب، دیگر مقتدر جماعت اہل سنت کے علماء کرام، بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ایسی محفل پاک میں مشترکہ طور پر شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جو ایک سفر حرمین شریفین سے تعلق رکھتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے یہاں آنے کے بعد میں پتہ چلا کہ میں کہیں مہمان بن کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں گھر کا میزبان ہوں، کیونکہ اپنا ہی پریوار ہے، اور جب پریوار میں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں آپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنی جو ہے آپ لوگوں کی جتنے طور پر وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ حضرات کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، ان فرمودات کے مطابق بندہ زندگی گزارتا ہے تو وہ بندہ کہیں پر بھی ٹھوکر نہیں کھاتا ہے، بلکہ وہ جس راہ کی طرف گامزن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسے کچھ نہ کچھ گوشہ مل جاتا ہے اور اسے زندگی گزارنے کا ایک مشعل راہ مل جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، اس زندگی گزارنے میں کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنا گرو مانتا ہے، تب جا کر کے وہ اپنی زندگی گزارنے میں کہیں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے تو آدرش کس کو مانے؟ دنیا دار کو مانے یا کسی اور کو مانے؟ انہیں مان کر کے کب تک مانے کر ہماری زندگی سنور سکتی ہے؟
आदर्श और हम अपना जो कि रहबर माने और हम जिसकी जिंदगी को उसवाए हसना के तौर पर माने, तो ऐसी जात को माने जिस जात के लिए न मिटना है न मिटाना है, जो न मिटाई जा सकती है, और वो जात अक़दस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कि बंदा जब भी जो है उसे जिंदगी के जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक पड़े और जिस जो शोबे से उसे जो है लाहिक हो, वो बंदा हुजूर की सीरत को उठा करके देखे, बंदे को रोशन जो है गोशा मिल जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है। रात का अंधेरा हो तब भी हुजूर की सीरत को उठा करके देखेगा, पता चल जाएगा कि मुझे हुजूर के नक्शे कदम पर चलना है और हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना है। सफर में हो, हज़र में हो, जलवत में हो, खलवत में हो, घर हो या कहीं और जगह पर चला जाए, लेकिन हुजूर की सीरत को अपनी निगाहों के सामने रखा करता है तो बंदा दुनिया में कामयाब व कामरान हो जाता है। और हो भी क्यों ना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की कल बरोज़े क़यामत वो मेरे साथ जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, बहुत कल वो बरोज़े क़यामत मेरे साथ जन्नत में होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो है हम अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया के अंदर जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। आज इंसान जिंदगी गुजारता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, माल की ज़कात भी निकालता है, हज भी करता है, उम्रा भी करता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो परेशान नजर आता है। आखिर वजह क्या है? उससे पूछा जाता है, वो बताता है मैं नमाज पढ़ता हूँ, 5 वक्त नमाजी हूँ, रोजे रखता हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई परेशानी लाहिक होती है। तो यहाँ आकर के हमें ये बात जो है कहने पर जरा सी भी झिझक महसूस नहीं होती कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से नमाज का फैजान नहीं मिला करता है। अरे नमाज को देखना चाहते हो, चलो करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने सजदा किया है। वो सजदा ऐसा लाजवाब सजदा था कि यजीदियों के दांतों को खट्टा कर दिया था, और हुसैन के सजदे ने बता दिया नमाज पढ़ना चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में ऐसा सजदा कर लो कि दुनिया देखती रह जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार अनवर में जो है खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम इसहाक़िया, मुफ्ती आजम राजस्थान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ की गोद से लेकर के कब्र की कोठरी तक सारी गाइडलाइन अता कर दी है, बंदे को किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। माँ की गोद से लेकर के कब्र की कोठरी तक कोई ऐसा जिंदगी का हिस्सा बाकी नहीं छोड़ा जिसमें मेरे नबी ने हमें जो है अपनी जो है तारीख और इल्म और जो है वो रोशनी अता ना की हो। 63 साल मुख्तसर जिंदगी के अंदर नबी ने वो सिस्टम दे दिया। अगर कोई बिजनेस से ताल्लुक रखता है, बिजनेस कैसे करना चाहिए वो भी बता दिया। सियासत से ताल्लुक रखता है, सियासत कैसे करनी चाहिए वो भी मेरे नबी ने मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर बता दिया। अगर कोई समाजी लेवल पर किसी तरीके से वो पंचायती करता है तो उसे भी बता दिया गया कि लोगों के माबैन अदल इंसाफ कैसे किया जाता है, वो भी मेरे नबी ने गाइडलाइन दे दी है। कौन सा ऐसा शोबा है जिंदगी का जिसमें मेरे नबी के फरमुतात ना मिलते हो? कमी तो हमारी है कि हम हुजूर की सीरत को पढ़ते नहीं है या सुनते नहीं है। जिस हजरात ने मेरे नबी की सीरत को पढ़ा है या सुना है वो तो जिंदगी के अंदर कभी नाकाम नजर नहीं आता, बल्कि कामयाबी की डगर पर चलता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके जो है कुरैश जो है कुरैश खानदान है, और कुरैश खानदान के अंदर कबीला मखजूम बनी मखजूम है, और एक औरत चोरी कर देती है। इस्लाम का कानून है कि जब कोई चोरी कर देता है तो उसके सीधे हाथ का पोंचा काटा जाता है, सीधे हाथ का पोंचा काट दिया जाता है। आप न घबराएं, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई वो हुकूमत नहीं है जिसकी वजह से कोई चोरी कर लेगा तो जो है कोई पोंचा काट देगा, नहीं काटा जाएगा। जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ ये कानून है, शरीयत का कानून है
کہ کوئی چوری کر دیتا ہے اس کے لیے یہ سیدھے ہاتھ کا پہنچا کاٹ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ بار بار جب بھی چوری کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اسے اپنا یہ ہاتھ اسے جو ہے متنبع کر دے گا، خبردار چوری کی طرف ہاتھ مت بڑھانا، ورنہ یہ پہنچا کٹا ہے، یہ بھی کٹتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا۔ اس لیے وہ اس وقت جو ہے بار بار اس چیز کو یاد رکھے گا، خبردار رہے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وہ عورت چوری کر دیتی ہے، اب چوری کر دی تو قبیلہ قریش کے لوگ آ جاتے ہیں، کہا کہ حضور کو خبر، حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ جاتا ہے تو اس وقت حضور تو شریعت کا حکم نافذ کریں گے اور یہ ہوگا کہ اس عورت کے سیدھے ہاتھ کا پونچا کاٹا جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے جو ہے اس کا کوئی ایسا سپورٹ کریں اور ایسی جو ہے حمایتی بن جائیں تاکہ حضور کے دربار میں مسئلہ پہنچ بھی جائے تو حضور اس کے جو ہے پونچے کاٹنے کا حکم ارشاد نہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ جو ہے ذرا ٹھہر کر کے سوچیں، اگر ہماری برادری کا کوئی شخص چوری کر دیتا ہے، ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی چوری کی ہے لیکن ہم جو ہے ہماری برادری کا نام جو ہے ناک نہیں کٹانا چاہتے ہیں، ہم اپنی برادری کو نیچا دکھائیں یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے ہم نے گنہگاروں کو، ہم نے مجرموں کو پناہ دینا شروع کر دیا ہے، تبھی تو ایسے ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں، ورنہ اگر ایک ہی جھٹکے میں انہیں بتا دیا جائے نبی کی سیرت کیا ہوا کرتی ہے اور نبی کی سیرت پر عمل کرنے سے بندہ کیسے سدھر جایا کرتا ہے، میرے نبی کی سیرت پر عمل کیا جاتا تھا، کوئی شخص گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھایا کرتا تھا بلکہ حضور کی سیرت کے مطابق زندگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی سیرت کے مطابق زندگی گزارا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں میرے نبی کی آمد ہوتی ہے، آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی بھی بچے کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ کسی اور کا جو ہے بیٹا میرے گھر پر، میرے گھر کی چوکھٹ پر داماد بن کر کے آئے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ اکبر، اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج وہی دور ریٹرن آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، بچیوں کو واپس زندہ دفن کیا جا رہا ہے، اور وہ کس صورت میں؟ کنیا بھون کی شکل میں، کنیا بھون کی شکل میں، کہ جب پہلے ہی سے جو ہے وہ لیبوریٹریاں کرا دیتے ہیں اور پہلے وہ جانچیں کرا کر کے سارا جو ہے ڈیٹیل جان لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بچی ہوتی ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا بچی کو زندہ دفن کرنا نہیں ہے، بچے کو مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب تک جو ہے جس طریقے سے شادی نہ ہونے سے پہلے جس طریقے سے آج جو ہے لوگ گناہوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور شادی سے پہلے وہ جو کہ جس طریقے سے گربھوتی ہو جاتی ہے وہ اپنے ناک کو چھپانے کے خاطر ہاسپٹلز میں جا کر کے اس جو ہے گربھ کو گراتی ہے اور پھر جو ہے ان بچوں کو جو ہے جھاڑیوں کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ آپ اخبارات پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اخبارات میں کیا کیا چیزیں آتی ہے۔ روزانہ کہیں نہ کہیں یہ خبر چھپتی ہوئی نظر آتی ہے کہ فلاں جھاڑی کے اندر بچہ پھینکا ہوا ملا، فلاں نالی کے اندر بچہ بہتا ہوا پایا گیا۔ یہ کون پھینکتا ہے؟ یہ کون دفن کرتا ہے؟ یہ جھاڑیوں کے اندر بچیوں کو کون پھینک کر کے جاتا ہے؟ یہی تو انسان ہے جو اپنے جو کہ ان لاڈلوں پر رحم نہیں کھایا کرتا ہے، نبی کی سیرت کو بڑا نہیں کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اولاد کی کیا قیمت ہوا کرتی ہے، اولاد کیا مرتبہ رکھا کرتی ہے، اولاد سے اللہ پاک کتنا خوش ہوا کرتا ہے۔ ارے اللہ اگر بیٹی کی شکل میں نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے گفٹ کے طور پر۔ لیکن آج ہم نے کیا کر رکھا؟ اگر کسی کے یہاں 4 بیٹی ہو جاتی ہے تو وہ 5ویں بیٹے کی تمنا کرتا ہے، لیکن بیٹی ہوتی ہے تو اس کے منہ اتر جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ اور بات بتاتا چلوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے گھر میں اگر بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ ایک رحمت عطا کرتا ہے، ایک رحمت کی شکل میں جو ہے بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس رحمت کے آنے پر 7 دن ہوتا ہے، 7 دن پر اس کے سر کو منڈایا جاتا ہے، سر کو منڈا کر کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنے بال تکڑی یعنی ترازو میں تول کر کے اتنی چاندی
या उसकी कीमत गरीबों में तकसीम की जाती है। और जो है 7वें दिन उसका नाम रखा जाता है, 7वें दिन उस बच्चे का अकीका किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, 7वें दिन और हमारे घर में सिर्फ एक रहमत आई है, उस रहमत के आने पर हम इतनी खुशी मनाते हैं कि उनके उस आने पर मिठाई बांटते हैं, उसके आने पर अकीका करते हैं, उसके आने पर जो है सदका व खैरात करते हैं, उसका अच्छा से नाम का सेलेक्ट करते हैं। तो भला हम भूल क्यों जाते हैं? अल्लाह पाक ने हमें औलाद की शक्ल में एक रहमत अता करी है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को सारे जहां के लिए रहमत बना कर सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सारे जहां के लिए रहमत बना करके भेजा है। उस रहमतुल लिल आलमीन की आमद पर हम खुशियां क्यों नहीं मनाए? घूम करके मनाना चाहिए। बल्कि कोई शायर कहता है, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। अरे कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत की आमद पर जो है ऐसा उजाला हुआ, ऐसे उजाला हुआ, पूरी दुनिया में रोशनी छा जाती है और दूर दूर के महलात के कंगोरे दिखने लग गए। मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ कौन सा सैटेलाइट लगा हुआ था जो मक्का की सरजमी पर वो सब देख रहे थे? कोई सैटेलाइट नहीं थी, नबी की आमद थी, नबी की रोशनी की वजह से वहाँ के दरो दीवार रोशन हो चुके थे और वहाँ के लोगों ने देखा केसरो किसरा के महलात को भी देखा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन ऐसा अल्लाह पाक ने हमें नबी अता फरमाया और ऐसे नबी की हमें सीरत अपनाते हुए शर्म आती है, हया आती है। एरे गेरे नतू खेरे के कोई खान बन करके आ जाता है, उसकी हम जो है टाइटल को अपनाना शुरू कर देते हैं। किसी हीरे ने अगर टेढ़े मेढ़े बाल कटा दिए, आज का मेरा नौजवान टेढ़े मेढ़े बाल कटाने पर शर्म महसूस नहीं करता। और अगर फटी हुई पैंट पहन दी तो उसी हीरो की जो है या उसी जो है स्टार की नकल करने के खातिर फटी हुई पैंट पहन करके जमाने को यह बताना चाहता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई फटीचर है तो मुझसे ज्यादा कोई फटीचर नहीं है। क्या बताना चाहते हैं? घर में माँ बहनें हैं, घर में वालिद मोहतरम है, घर में हाजी साहिब है, वो घर में कौन नहीं है? उनके सामने घुटनों पर फटी हुई पैंटें पहन करके घूम रहे हैं। बल्कि आज तो एक सिस्टम चला है, रातों रात में जो है चड्डे पहन के घूमते हैं। चड्डे पहन, गाँव में वो ये सिस्टम कम है, लेकिन शहरी इलाकों में जो है वो चड्डे पहन करके घूमते हैं। और उनसे पूछा जाता है, भाई चड्डे क्यों पहनते हो? तो कहते हैं, हजरत हमें गर्मी महसूस होती है। तो मैं उसको मजाकिया तौर पर कहता हूँ कि भाई इसमें कौन सी ऐसी लगी हुई है जो तुम्हें जो है ठंडक पहुंचाती है? जरा सोचना चाहिए कि हमारी अकलें कहाँ मस्त हो गई, कहाँ अकल का परिंदा उड़ गया। क्या हमने अपने अकली घोड़े थोड़ा थोड़ा करके ना जाने किन के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे घुटनों तक, घुटनों के नीचे तक ये हिस्सा छुपाना अल्लाह के रसूल ने फर्ज करार दे दिया है। और अगर कोई घुटनों से ऊपर या घुटनों तक खुला रखता है, गोया वो सबके सामने नंगा घूमता है। इसलिए जब भी तो ये रोना रोते हैं कि घर में कमाते बहुत हैं, बरकतें नहीं होती है, घर में जो खैर बेबरकती का दौर दौरा है, बेचैनी है, बेसुकूनी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जरा हमने हुजूर की सीरत को अपने पीठ के पीछे डाल दिया, वरना मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छे। फलहु अज्रु मिअति शहीद। अरे जिसने फसाद उम्मत के वक्त मेरे नबी की सुन्नत को मजबूती से थामे रखा, अल्लाह पाक उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। जंग में जाने की हाजत नहीं, बॉर्डर पर रह करके जो अपने देश के लिए, वतन के लिए जान को फिदा कर देते हैं, वो बड़ी बातें हैं। लेकिन इस दौर के अंदर अगर कोई नबी के तरीके को फॉलो करता है, ऐसे दौर में कि हर कोई उसे ताना देता हो, हर कोई उसे इल्जाम से काम लेता हो, हर कोई उसे गाली गलौज से याद करता हो, हर कोई ये कहे कि दखियानूसी है, हर कोई ये कहे कि ये जाहिल है, ये कहे कि ये अनपढ़ है, ये कहे कि ये समाज से हटा हुआ है, ऐसे दौर में अगर कोई नबी की सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐसे बंदे को अल्लाह पाक 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। आए तो सही, हम कहते हैं इस्लाम पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो गया। भाई इस्लाम पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल है कि गरीब नवाज के लिए मुश्किल था?
बोल बोल, अरे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, गरीब नवाज अरबिस्तान से चल करके हिंदुस्तान आए। कोई आपका पैरोकार न था, कोई आपका भक्त न था, कोई आपका अनुयायी न रहता था, लेकिन आए थे तो आप ये सोच के नहीं आए थे कि मैं वहां जाऊंगा तो मेरे हाथ गले के अंदर हाल डाले जाएंगे, मेरे फूल डाले जाएंगे, बल्कि जिस हद हो गई कि जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता बंद कर दिया जाता था। सुभान। लेकिन गरीब नवाज रसूलुल्लाह की सीरत को आम करने और उस पर अमल करते हुए ऐसा मोहब्बतों का पाठ पढ़ाया कि जो लोग जान के दुश्मन बने हुए थे उन्होंने अपनी जानों को गरीब नवाज के कदमों में निछावर कर दिया था, गरीब नवाज के कदमों पर निछावर कर दिया था। कहा सरकार इतने दिनों तक तो आपको हमने पहचाना न था, अब तो बस यही है निसार तेरी, अब तो बस यही है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, का वली जिस पर निगाह डाल दिया अल्लाह के वली उनके नक्शे को चेंज कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत बैठ जाते हैं या आले रसूल, ये बहुत हम बड़े किस्मत वाले हैं जो हमारे इन इलाकों के अंदर गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन जो है ऐसे आले रसूल हमारे घरों में आते हैं। किस्मत वाले हैं, किस्मत वाले। कभी तो लोनी शरीफ का खानदान चल करके आता है, कभी सोजत शरीफ का खानदान चल करके आता है, कभी सूजत शरीफ का खानदान चल करके आता है। लोगों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अल्लाह पाक ने हमें ऐसे रहबरों रहनुमा अता किए हैं, वरना हमें कौन पहचानता था। इन्हीं का सदका है, इन्हीं की दुआओं के बदौलत आज हमें जो है अल्लाह के रसूल के जो गुलामों में शुमार किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत रसूल के नवासों का सदका है, वरना हमें कौन पहचानता था। ये इलाके तुम्हारे यही थे, हमारा इलाका बड़नवा यही था, दूसरे इलाके यही थे, लेकिन हाँ जब से इन बुजुर्गों ने दीन की आमद होती है, इनका कदम पड़ता है तो ऐसा कीमती कदम हुआ करता है, वहां से कुछ न कुछ दे करके ही जाया करता है। दूसरी चीजें पड़ती है लेकर के उठती है, लेकिन ये चीज दे करके जाती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बच्चों को आले रसूल की मोहब्बत सिखाओ, हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, आले रसूल की मोहब्बत सिखाओ। तो बात चल रही थी, उस औरत ने चोरी करी, चोरी की, वो मसला पहुंचता है हुजूर के दरबार में। कुरैश के खानदान के लोग, बड़े बड़े अशराफ कुरैश थे, वो सारे जमा हो गए, बड़े बड़े लोग जमा हुए। कहा आज हमारी नाक कट जाएगी, हमारी खानदान के अगर किसी औरत का हाथ काटा जाता है तो बड़ा जो है हमें नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए ओसामा बिन ज़ैद हुजूर के दरबार में उनको जो है अपनी बात कह करके भेजा कि ओसामा आप जाओ और जाकर के उन्हें जो है बताओ, हुजूर के दरबार में अरीज़ा पेश करो, या रसूल अल्लाह ये औरत है, इसने कर दी, अब जो है ये इस तरह का जो है आप फैसला ना फरमाए। इस तरीके से वो सपोर्ट जो है हिमायती बन करके हजरत ओसामा बिन ज़ैद हुजूर के दरबार में जाते हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं बस अपनी बातों को स्टॉप तरफ लाता हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है और बड़ों की मौजूदगी में बोलना भी बेअदबी समझता हूँ, इसलिए वरना बोलने के लिए बहुत स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मौलाना उमर साहब कह रहे थे कि हमें ना तो माल पर है न किसी और चीज़ पर फख्र है, बस हम तो हुजूर के दीन के और इसी पर हमें नाज है। कभी कहीं तो कभी कहीं पूरे राजस्थान भर में जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से। उम्र इतनी नहीं है, नहीं उम्र ना मेरा बैकग्राउंड इतना है कि मेरा कोई बाप जो है आलिम दीन रहा हो, लेकिन इन्हीं का सदका है, इन्हीं की दुआओं के बदौलत आज पूरे राजस्थान में जाना होता है। तो ये जो है दीन की खादिमों की हैसियत हुआ करती है, और अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें इज्जतें देना चाहे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। व तो इज्जु मन तशा व तो दिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जतें अता फरमाता है और जिसे चाहता है उसे जिल्लतें अता फरमाता है। ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो औरत के जो है हजरत ज़ैद बिन ओसामा बिन ज़ैद बन करके हिमायती बन करके आते हैं, हुजूर के दरबार में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जरा हमारी तरफ तवज्जो फरमाए, रहम फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओसामा से इरशाद फरमाया, ओसामा ऐसे कामों में तुम हिमायती बन करके आते हो, खुदा
ऐसे कामों में हिमायती बन करके मत आया करो, इसलिए कि चाहे जब इस तरह का अल्लाह का हुक्म है कि इसके चोरी के एवज में उसका हाथ का सीधे हाथ का पोंचा काटा जाएगा, तो अब नहीं रोका जा सकता। हुजूर ने अपने जानिसारों की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाया, ए लोगों सुन लो, आज तो इस औरत ने चोरी की है जिसमें शरीयत का हुक्म लागू ये होता है कि इसके सीधे हाथ का पोंचा काटा जाए। अगर इसी जगह पर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर देती तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पीछे नहीं हटता, बल्कि मैं अपनी बेटी के भी हाथ को काट डालता। ये हमें पैगाम दे दिया कि अगर कोई हुजूर की शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, उसमें खानदान नहीं देखा जाता, उसमें रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है, बल्कि हुजूर का फरमान देखा जाता है। जहां हुजूर का फरमान है उसी जगह पर हमारी जान कुर्बान है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। इसलिए हुजूर की सीरत पर अमल करें। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे अजीज, मेरे मोहतरम दादा जान जनाब यूसुफ खान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर और अल्लाह के घर की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह पाक इनकी इन ज़ियारतों को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए, और हमें भी इनके इस ज़ियारत के सदक़े व तुफ़ैल हमें भी जो है आका करीम अपने दयार की हाज़िरी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।